بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا نام لے کر آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ آج ہم کہیں رشتہ داروں کے ہاں جا رہے ہیں۔ ابھی 1:20 ہیں۔ دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے، بہت گرمی ہے۔ ابھی ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہم رشتہ داروں کے ہاں پہنچ گئے ہیں۔ تقریباً 1:20 پہ روانہ ہوئے تھے اور 2:50 پہ یہاں پہنچے ہیں۔ تو ابھی برا حال ہے، بہت گرمی ہے، راستے میں بہت گرمی تھی۔ تو ابھی ہم شاور لے کے فریش ہوتے ہیں، پھر بعد میں آپ سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین، بہت اچھا موسم بن گیا ہے۔ آج ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، ابھی بارش رک گئی ہے، ابھی ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ آج صبح بہت گرمی تھی، اتنا گرمی تھی، حد سے زیادہ گرمی تھی۔ پتہ لگ رہا تھا آج کوئی نہ کوئی چیز آئے گی، آندھی آئے گی یا بارش آئے گی۔ ابھی ہلکی ہلکی بارش آ گئی ہے، تو ابھی کچھ موسم اچھا ہو گیا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے۔ شام تک دیکھتے ہیں موسم کیسا رہتا ہے۔ بادل تو بہت زیادہ نہیں ہے، بس ایک بادل ہے جو ہلکا ہلکا اوپر چڑھ رہا ہے، اور برسا بھی وہیں کا بادل ہے، وہ آگے چل رہا ہے اور ہلکا ہلکا برس رہا ہے۔ پیچھے اور بادل بھی آ رہا ہے۔ باہر بہت دھوپ تیز تھی، ابھی میں اندر آ گیا ہوں کمرے میں۔ یہاں بجلی بھی نہیں ہے، دیکھو پنکھا رکا ہوا ہے۔ یہاں بھی گرمی ہے، باہر بھی گرمی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی، اس کے بعد ہبس زیادہ ہو گئی ہے۔ صبح تو بہت زیادہ ہبس تھی، لیکن تھوڑی بارش ہونے کے بعد کم ہو گئی ہے ہبس، لیکن ابھی بھی ہبس ہے، گرمی ہے۔ یہاں بجلی بھی چلی گئی ہے، ابھی بارش کو 1 منٹ نہیں ہوا تھا، بجلی پہلے چلی گئی ہے۔ یہاں گاؤں کا ماحول ہے نا، کوئی دیکھنے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی بجلی دیتے ہیں، جب جی چاہے بجلی دے دی، جب جی چاہے بجلی کو کاٹ دیا۔ یہاں ان کی دادا گیری چلتی ہے، یہ سب اندھا قانون ہے یہاں گاؤں کا، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے الیکشن کے لیے آتے ہیں، اپنے ووٹ لے کے دوبارہ 5 سال اپنے حلقے میں نظر بھی نہیں آتے۔ نظر آ جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ لوگ نظر بھی نہیں آتے 5 سال کے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں اور دوبارہ آ جاتے ہیں، ملتے ہیں، سمجھتے ہیں، ووٹ دے دو، ہم آپ کا یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے، سولنگ دے دیں گے، سڑک دے دیں گے، گٹر لائن دے دیں گے، گیس دے دیں گے، لیکن یہ لوگ الیکشن کے بعد دوبارہ نظر بھی نہیں آتے اپنے حلقے میں۔ یہ یہاں کا یہ ماحول ہے، اس لیے یہاں بہت زیادہ مشکلات ہے، راستوں کی مشکلات ہے، سڑکیں نہیں ہیں، کچی سڑکیں ہیں، تھوڑی سی بارش آ جائے تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہاں کا یہ ماحول ہے۔ جی ناظرین، آج دوسرا دن ہو گیا ہے، صبح کا ٹائم ہے، 7 بج رہے ہیں۔ ابھی ہم باہر نکلے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ یہاں کیکر کے درخت سے ایک مسواک بھی بنائیں گے، دیسی طریقہ گاؤں میں جو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، گاؤں کی سیر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ سڑک اس طرف آ رہی ہے، ہم بھی یہاں سے آئے تھے اور اس طرف جا رہی ہے۔ یہاں بہت ماحول پرسکون ہے، کسی چیز کا یہاں شور نہیں ہے، بالکل سکون کا ماحول ہے، پرندوں کی ہلکی ہلکی آواز ہے۔ شہروں کی طرح یہاں شور نہیں ہے، جو شہروں میں صبح صبح گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا شور ہوتا ہے، اس چیز کا یہاں شور نہیں ہے، بالکل پرسکون ماحول ہے۔ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، صبح صبح بالکل سکون ماحول ہوتا ہے اور شام کو بھی بالکل سکون ہوتا ہے۔ دوپہر کو تو بالکل کسی چیز کی آواز بھی نہیں ہوتی گرمی کی وجہ سے۔ اگر درختوں کے نیچے جا کر کوئی بیٹھے تو اس کو پرندوں کی آواز درختوں کے اوپر آ جاتی ہے، کیونکہ دوپہر کو پرندے درختوں پہ آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 مہینے پہلے بارش اور آندھی آئی تھی، یہ کھمبا گر گیا تھا۔ وابٹا والوں کو خیال بھی نہیں ہے کہ کہیں کھمبا گرا ہوا ہے، نہیں گرا ہوا۔ یہ
आखिरी गांव है बिल्कुल, इसके साथ ही आगे दरिया सतलुज है। इनको ख्याल भी नहीं है ये खंबा किसी गरीब का गिरा है नहीं गिरा, बस इनको रिश्वत चाहिए, ये रिश्वत पे काम करते हैं। अभी जो बारिशें हुई हैं कल और परसों बारिशें हुए हैं, उस बारिश की वजह से ये साथ वाले गांव में ट्रांसफार्मर सड़ गया था। उस गांव के कुल 10 घर हैं। बिजली वाले 20,000 मांग रहे हैं ट्रांसफार्मर रिपेयर करने का, और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर 1,000 बिल आ जाए बिजली का तो उनके लिए परेशानी बन जाती है। ये बिजली वाले उनसे मांग रहे हैं 20,000। अब कुल 10 मीटर हैं, ये 2-2 हज़ार मीटर का वो कहाँ से लाएं। अभी मसला उनका चल रहा है। वो तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं वो गर्मियों में तड़प रहे हैं, उनके बच्चे तड़प रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को किसी का एहसास नहीं है। इनको बस बाबा कौम कैद आज़म वाला नोट चाहिए ताकि ये काम करें उस नोट को देखकर। गांव का माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ सारे दरख्त हैं, बहुत सुकून आता है दरख्त देखकर, और सब्ज़ा देखकर बहुत सुकून आता है। मेरी तो आदत है सुबह सुबह उठकर ये सब्ज़ा देखता हूँ, आँखों को बहुत सुकून आता है। ये आप भी देख सकते हैं, ये सब्ज़ा बहुत ही प्यारा सब्ज़ा है, हर तरफ सब्ज़ है। और इन दरख्तों की बहुत ही अहमियत है यहाँ, इनकी वजह से यहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है और दोपहर को बड़ा मज़ा आता है इनके नीचे बैठने का। गांव में सुबह सुबह बहुत सुकून होता है, बहुत ही मज़ा आता है, बिल्कुल किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होती। यहाँ सुबह बिल्कुल मध्यम सी आवाज़ होती है इन परिंदों की, बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा आता है इन परिंदों की आवाज़ सुनकर। सुबह सुबह की करके दरख्त से मिसवाक बनाकर हम लोग दांतों को साफ़ करते हैं, इससे भी बहुत मज़ा आता है दांत साफ़ करने का। आप लोग भी जब भी गांव में जाएं तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। सुबह सुबह सब्ज़े को देखें और कीकर से मिसवाक बनाकर मिसवाक करें। इंशाअल्लाह आपको जो दांतों का दर्द होगा, मसूरों का दर्द, वो 1 हफ्ता कीकर का मिसवाक करने से आप लोगों का दर्द दूर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में बताना कि हमारे रिश्तेदारों का गांव आपको कैसे लगा है। ये बिल्कुल दरिया सतलुज के साथ है, तकरीबन 4-5 एकड़ दूर है। 1,000 फुट बनेगा जो इस गांव से दरिया सतलुज दूर है। और अगस्त में बहुत ही डर रहता है फ्लड का, क्योंकि यहाँ दरिया बहुत जल्दी ऊपर आ जाता है और सैलाब का पानी निकल जाता है, और ये गांव जितना भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सब डूब जाते हैं। यहाँ सब पानी पानी होता है। तकरीबन 10 साल हो गए हैं इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, दरिया का सैलाब बाहर नहीं निकलता। आगे थोड़ा बहुत बंद वगैरह दे देते हैं, इससे ये दरिया कंट्रोल हो जाता है। अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो ये निकल जाता है, जैसे फ्लड 1988 में आया था उस जैसा पानी है तो यहाँ बाहर निकल जाता है। थोड़ा ये किनारों के बराबर है तो ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं और बाहर नहीं निकलने देते। दरिया भी बहुत सख्त है, ये चनाब, जहलम, रावी, इन सब से ये बहुत तेज़ बहता है और इसका कटाव भी बहुत ज़्यादा है दरिया सतलुज का। सुबह सुबह गांव का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत ही खामोशी होती है, बहुत सुकून होता है। शहरों में तो बहुत शोर होता है सुबह सुबह। यहाँ गांव में सुबह सुबह बहुत खामोशी होती है, परिंदों की आवाज़ प्यारी प्यारी होती है और बहुत ही सुकून का माहौल होता है। आप देख सकते हैं कितना सुकून है यहाँ, कोई किसी की आवाज़ नहीं, न शोर है, किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आ रही। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सुकून का माहौल है। सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं। यहाँ लोग अपने काम कर रहे हैं, लोग यहाँ कामों के लिए निकले हुए हैं घर से। कोई घास काट रहा है, कोई जानवरों को छांव पे बांध रहा है, कोई जानवरों को पानी पिला रहा है। हर कोई अपने काम में यहाँ लगा हुआ है सुबह सुबह। जब दोपहर को लोग थक जाते हैं, धूप लगने लगती है तो लोग दरख्तों के नीचे आ जाते हैं। अगर बिजली चली जाए यहाँ गांव में तो लोग दरख्तों के नीचे आके बैठते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है। अगर बिजली है तो ठीक है, नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ दरख्तों का साया बहुत मज़ेदार साया होता है, यहाँ बहुत सुकून होता है दरख्तों के नीचे। अगर कोई भाई आप में से कभी किसी गांव में आए तो आप ये माहौल चेक कर लेना, दरख्तों के नीचे दोपहर को कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल यहाँ मज़ा आ जाता है। दोपहर को यहाँ ठंडी लस्सी भी मिलती है, गांव में आसानी से मिल जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा आसानी से मिलती थी, जब से ये दूध वाली कंपनी आई हैं उस दिन से यहाँ लस्सी
कम मिलती है लेकिन मिल जाती है। यहाँ परेशानी कोई नहीं है, लस्सी, दूध, दही, मक्खन की। यहाँ गांव का माहौल बहुत अच्छा है। आप लोगों ने ज़रूर गांव में आके ये चीज़ें चेक करनी है कि आपके गांव में ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो अब चलते हैं, नाश्ते का टाइम हो गया है, इंशाल्लाह हम नाश्ता करते हैं। जी नाज़रीन, हमने तैयारी कर ली है, अब हम घर जा रहे हैं। 9:30 सुबह के बज रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे हमको जाने के लिए। तो अब हम रवाना हो रहे हैं, इंशाल्लाह घर पहुंचकर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, अभी हमें 40 मिनट हो गए हैं सफ़र करते हुए। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, थोड़ा सा पानी शानी पी लेंगे, थोड़ा रेस्ट करके फिर सफ़र करेंगे। इंशाल्लाह घर जाके आपको मिलेंगे। जी नाज़रीन, हम अपने घर पहुंच गए हैं, तकरीबन 1 घंटा और 35 मिनट लगे हैं। हम अपने घर पहुंच गए हैं। आज बहुत गर्मी है,